everyone. So, welcome to my podcast today where we are heading to the production house to check out the new samples of our brand. And today I have Eshita, the co founder of Javanishka, who is always so busy working. But finally, I have convinced her today to take my questions, and she has also said yes. So, today we'll be discussing about the current trends in the fashion world, her favorite fashion influencers, or maybe designers for that matter, and the chit chats of business world. So, Ishita, are you excited for today? Definitely, Indrani. Hi, everyone. Thank you, Indrani, for the warm welcome. Great to have you guys in our team. I'm glad that I could inspire even one. So let's see. Let's start. What do you have? इतने टाइम से you were saying कि डिस्कस करना है. Let's start. आज मौका मिला है. पूछो क्या पूछना है तुम लोगों को. So, whenever you come to the office, driving, and even after that, like you're always so working, you're always on the go. You execute things in a manner where I haven't seen anyone doing work like that. And at the same time, you handle your personal, professional level so well. It is so balanced, I feel. Were you always like this? बचपन से आप ऐसे ही थे कि मतलब काम करते करते हो गया कहीं ना कहीं आप इतने सीरियसली इतने डेडिकेशन के साथ सारे काम करते हो? बहुत सारी चीज़ें हैं. I explore with the time. So I think I had kind of this within myself. But during this journey of Javanishka, when I started Javanishka, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी हैं which I did not think कि I had within myself. So that was the entrepreneur journey that I started. And yes, बचपन से तो I was never people explore themselves with time and journey, what they choose as a career. So I think yes, Javanishka played a major role into like transforming what I am today. And yes, it's not it. We are learning, we are getting better with time. Now that we work in the team, so we know that your younger brother Karan is the co-founder. So वो भाई बहन की लड़ाई होती थी बचपन में कि आप लोग का बॉन्डिंग बचपन से ही ऐसा था कि बचपन में वो बड़ी दीदी वाली हायरार्की थी होती थी बीच में कि व्हाट वाज इट लाइक? नहीं, हमारा बचपन नॉर्मल सिबलिंग्स की तरह रहा है. हम भी खूब लड़ते झगड़ते थे यार. एकदम ऐसे ही करते थे. लेकिन यस, बड़ी दीदी वाला जो एलिमेंट रहता ही है क्योंकि आई एम एल्डर टू हिम. तो या बट विद टाइम आई थिंक हम बाहर गए पढ़ने फॉर एजुकेशन एंड एवरीथिंग. तो वो एलिमेंट जो हम एक साथ रहते थे पूरा पूरा टाइम स्कूल से आते थे एंड वी वेंट स्कूल टुगेदर. और बाद में हमने जब कॉलेज ज्वाइन किया तो आई थिंक हम दोनों काफ़ी टाइम तक देयर वाज अ गैप फॉर अराउंड 5 years. ये गैप था हमारे पास कि हम घर पे नहीं थे. वी वर एट डिफरेंट प्लेसेस फॉर एजुकेशन. या बट आई थिंक ये ऑन्टरप्रेन्योर जर्नी जो स्टार्ट हुई है आफ्टर वी केम बैक फ्रॉम स्टडीज़ एंड घर पे आए. उसके बाद कोविड के पीरियड में we were discussing, like it was a long story behind Javanishka. But yes, answering to your question that Karan and I had a bond of siblings, yeah, we had. And we were quite notorious also. आफ्टर यू गाइस स्टार्टेड जावनिश का बिजनेस जब रनिंग चल रही थी तो कभी कभी ऐसा ऐसा होता था कि कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे या फिर डिसएग्रीमेंट्स फॉर दैट मैटर. हाउ डिड यू गाइस यूज टू हैंडल इट? यस, सी कोई भी हो, कोई भी आपका बिजनेस पार्टनर हो, बी इट योर ब्रदर, बी इट योर स्पाउस, बी इट योर मदर, anyone from your family or your friend. So conflicts are the like major part of any business, or even for that matter your professional journey. But what matters is कि आप उसे कैसे टेक ओवर कर रहे हो और कैसे उसको एड्रेस कर रहे हो. आई थिंक इन दैट केस रिस्पेक्ट इज़ द मोस्ट प्राइमरी थिंग दैट यू शुड हैव फॉर योर बिजनेस पार्टनर. एंड हम दोनों में भी बहुत बार ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पे हम दोनों एक ग्राउंड पे नहीं आ पाते हैं. हमें लगता है कि ऑब्वियसली देयर थिंकिंग डिफरेंट है, एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है. तो हर एक प्रॉब्लम को देखने का तरीका भी डिफरेंट होता है, उसका सोल्यूशन भी दोनों का अलग अलग आता है. तो हम उसको ऐसे एडजस्ट करते हैं कि अच्छा what are you suggesting and what I am suggesting, and let's see what is working best for the brand, and then we address that. And obviously उसके लिए हम बहुत न्यूट्रल एक दूसरे को रिस्पेक्ट करके, एक दूसरे के मैटर्स को और ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करके वी एड्रेस दैट.
and then we do what is best for the brand. Now that I know both of you in person, so I know you guys are kind of polar apart, and so कभी कभी कन्फ्लिक्ट्स के बीच में, कन्फ्लिक्ट्स होने के बाद कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने ग्रज होल्ड किया है एंड यू गाइस डिडंट टॉक और समथिंग लाइक दैट, कि बिजनेस के बारे में इवन इफ यू आर एंग्री बट स्टिल यू हैव टू डू द मीटिंग्स एंड डिस्कशन? वो कभी कभी हो जाता है, ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, आई वुड नॉट लाई, लेकिन yes, you should know your boundary and you should give that person space जो हर एक इंडिविजुअल का होता है, चाहे वो कोई भी हो. पर्सनल स्पेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जब आप उसको क्रॉस करते हो कहीं ना कहीं, तो एक डिसएग्रीमेंट और एक कहीं ना कहीं एंगर, एक फ्रस्ट्रेशन आता है, एंड दैट डजंट लास्ट. यू शुड टेक दैट, एड्रेस दैट, कन्वे दैट. कम्युनिकेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए. कुछ भी हुआ हो, you have to communicate and sort it because it is required for your personal growth also and for the brand also. So yes, we practice that, and we try and improve. Everybody's trying improving. Now that you also said कि COVID में you guys started thinking about your business, but what was the brand story? We identified a problem, and that was majorly from Karan's side only. कि उसने ये देखा कि यार दीदी, you get to choose so many varieties for your outfit or product. मतलब when it comes to fashion, you have a lot of options in lot of fabrics, in lot of prints, and that too, like you can choose. बट सी, हम लड़कों के पास क्या ऑप्शन है कि हम या तो वही मोनोटोनस डिज़ाइंस चल रहे हैं, मोनोटोनस प्रिंट्स चल रहे हैं, वही सेम फैब्रिक्स पे अनएक्सप्लोर्ड फैब्रिक्स रहते हैं, कॉमन फैब्रिक्स रहते हैं. तो एंड दैट टू इट्स वेरी प्राइस पॉइंट पे भी, अगर आपको अच्छा मटेरियल चाहिए तो प्राइस पॉइंट पे भी कहीं ना कहीं इट वाज अफेक्टिंग पीपल्स पॉकेट. तो ये था कि यार क्यों ऐसा हो रहा है. बहुत बड़े ब्रांड्स के पास जाओ तो ये सारी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने ये घर में भी देखा कि यार अच्छा, ये चीज़ हमें लग रही है कि और भी लोगों को लग रही है. तो हमने अपने घर में, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली से हैं, कहीं ना कहीं कजिन्स का स्क्वाड हमारा बहुत बड़ा है, तो हमने उनसे भी कम्युनिकेट किया. तो समझ में आया कि येस, देयर इज़ अ प्रॉब्लम. एंड हमने सोचा कि ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इसमें. टेक्सटाइल का आइडिया था. वी वर नॉट इनटू गारमेंट्स, वी वर इनटू एक्सेसरीज सेगमेंट, एंड दैट टू इनटू B2B एंड एक्सपोर्ट होलसेल का था हमारा सेगमेंट. तो वी थॉट कि लेट्स ब्रिज द गैप बिटवीन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ब्रिज द गैप बिटवीन कस्टमर एंड द मैन्युफैक्चरर, जिससे हम प्रोडक्ट की प्राइस पॉइंट पर थोड़ा प्ले कर सकते हैं. एंड सेकेंडली, जब हम वो डिज़ाइंस and that too on unexplored fabrics, the material, the quality we provide to the customers, let's see what people are gaining out of it. So we started with the 30 SKUs. तब हमने पहला प्रोडक्ट हमारा जो लॉन्च किया था, उसमें हमने 3 4 5 डिज़ाइंस बनाई थी, एंड ऐसे करके हमने कुछ टाई डाई के सेट्स बनाए थे. उस समय टाई डाई वॉज इन टू ट्रेंड, एंड वी स्टार्टेड. तो इस तरीके से जावनिश का प्रॉब्लम, लाइक वी फाउंड द प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं हिंट किया, एड्रेस किया, लोगों से पूछा, सब ने एग्री किया या वी कैन वर्क अराउंड इट. यस, सो दिस इज़ हाउ जावनिश्का केम इनटू पिक्चर. बट येट अगेन, तब तक नाम नहीं डिसाइडेड था, बट द प्रॉब्लम वाज एड्रेस. Of course, first you identify a gap and then you come up with a solution. And for that matter, like ये जो भाई बहन का है, ये जो यंग ब्लड है, ये क्या कहीं ना कहीं आप लोगों को हेल्प किया, या फिर क्या कोई रेड एडवांटेज रहते हैं कि अगर आप फैमिली मेम्बर्स में से किसी को चूज कर रहे हो एज अ को फाउंडर? बिकॉज वी सी अ लॉट ऑफ मदर डॉटर spouses for that matter, two brothers also, but brother and sister, this combination is very rare. So क्या ये एडवांटेज कहीं ना कहीं, मतलब फैमिली एडवांटेज हेल्प किया है आप लोगों की जर्नी में? See, ये एडवांटेज तो रहता है. आई वुड एग्री टू दैट पॉइंट बिकॉज यू हैव ग्रोन अप विद दिस पर्सन. दे हैव सीन अ साइड ऑफ यू एंड दे समहाउ नो यू अपार्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स. तो वो एक आपका स्टाइल, वर्किंग स्टाइल, पर्सनल बिहेवियर एंड एवरीथिंग तो एक जो ट्रस्ट इश्यूज होता है, जैसे अगर हम फ्रेंड्स के साथ स्टार्ट करते हैं तो समहाउ कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट इश्यूज आता है लोगों में. ये चीज़ें नहीं होती हैं. फैमिली का एडेड एडवांटेज डेफिनेटली होता है, एंड हमें भी था. बट ऐसा नहीं है कि चीज़ें आसान होती हैं. अगर आप फैमिली में भी कर रहे हो तो भी चीज़ें आसान है कि ओ, ही इज़ माई लिटिल ब्रदर और शी इज़ माई एल्डर सिस्टर, सो आई शुड लिसन टू हर, और ही शुड ओबे, ऐसा करके ऐसा कुछ नहीं होता.
हम काम के टाइम पे ही इज़ करण टू मी एंड आई एम इशिता टू हिम एंड दैट्स हाउ थिंग वर्क्स एट जावनिष्का विद अस. And when you guys came up with Javanishka, I think that time you guys started in 2019, I guess, or 21. See, Javanishka started in 2021. Before that, it was एक आइडिया नहीं होता है. जैसे हम अपने बिजनेस स्कूल में थे, we were in the process of completing our MBA. तो I completed my MBA in 2019 and Karan, I guess 2020 during the COVID only. अच्छा, कोविड में तो सबको घर आना ही पड़ा था वापस. तो एक ये माइंडसेट होता है कि यार फैमिली बिजनेस है, तो कहीं ना कहीं हम बच्चों के माइंड में जिनका फैमिली बिजनेस होता है रहता है कि यार लेट्स हैव दे हैव दिस एंटरप्रेन्योर स्पिरिट विद इन देमसेल्व्स. तो वो विद टाइम बाहर आ जाती है. तो आई थिंक ये हमारे लिए एडेड एडवांटेज था बिकॉज एंड देन वी स्टार्टेड विद द प्रोडक्ट स्कार्व्स, आवर फर्स्ट प्रोडक्ट जो कि ऑलरेडी हम होलसेल कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे. तो हमने उससे स्टार्ट किया था एंड विद द माइंडसेट कि लेट्स provide it directly to the customer. So we started selling it on Amazon and Flipkart in 2019 and तब MBA करते करते हमने लिस्टिंग करी थी. मतलब फोटोशूट से इवन फॉर दैट मैटर सब स्टार्ट किया था. तो yes, but Javanishka came into picture in late 2021 when we identified the problem and शर्ट्स बनी उसके अराउंड, फैब्रिक्स क्यूरेट हुए, प्रोडक्ट रेडी हुआ. ऑब्वियसली वी हैड द चैनल, इनिशियल चैनल हमारे पास था कि हमें इसे ऑनलाइन ही लेके जाना है. एट दैट टाइम ई कॉमर्स वॉज बूमिंग. अभी भी ई कॉमर्स का स्कोप है. ई कॉमर्स वॉज बूमिंग लाइक स्टार्टेड फ्रॉम 2012 जब मैंने अपना फर्स्ट ऑर्डर प्लेस किया था व्हेन आई वाज इन माय 12th स्टैंडर्ड. तो उसके बाद तब नहीं सोचा था कि हम भी कुछ ऑनलाइन सेल करेंगे ऑब्वियसली. But yes, seeing the trend, seeing the industry, the market, we chose the platforms and we chose the products. So, Ishita, we all know that these are so many fashion brands are coming up with great products, with great marketing strategies. So, what do you think that you guys are doing different that will take you places, or what is the USP, if you, for that matter, like to talk about it? Like, there are a lot of fashion brands that are coming these days. I think our USP is something, the fabric that we are using, as I talked about, we are experimenting a lot in fabrics and we are doing the unexplored thing, exploring the designs, exploring the fabrics, exploring the silhouettes, if we talk about. तो मुझे लगता है कि अभी जैसे हमने मोडाल लॉन्च किया, मोडाल हमने देखा है थोड़ा सा विमेन सेगमेंट में ज़्यादा यूज़ होता है एंड दैट टू वेरी फाइन मोडाल जिसका कपड़ा इज़ वेरी सॉफ्ट, कंफर्टेबल, इट्स वेरी ब्रीदेबल, इट्स वेरी लाइट ऑन स्किन. इट्स लाइक कि इफ़ यू वेयर समथिंग ऑफ मोडाल आपको पता नहीं चलेगा आपने कुछ पहना है. तो वी लॉन्च दैट इन मेंस सेक्शन एंड वी लॉन्च्ड एन स्लिम फिट सिल्हूएट इन दैट एंड वो प्रोडक्ट हमारा इतना हिट रहा, लाइक पीपल आर मैड अबाउट दैट प्रोडक्ट कि ओ माई गॉड द फील, द फैब्रिक, द कम्फर्ट. So yes, we are, our USP is experimenting the unexplored, I would say, experimenting the unexplored and working on designs, working on the fabrics, and we are working on the another part that is like we are promoting a sustainable fashion. Sustainable fashion as in where people think कि ठीक है हमने आज ये लिया है and ताकि ये ज़्यादा दिन लास्ट करे, ज़्यादा वॉशेस, बिकॉज इन द इंडियन इंडियन कंज्यूमर्स माइंडसेट देयर इज दिस थिंग कि जो जितना ज़्यादा टिकाऊ है वो what the price है, what the money है, बट आजकल it's worth purchasing. पीपल आर मोर इनटू कि ठीक है ये भी ले लेते, ये भी ले लेते, ये भी ले लेते एंड कि कम में आ रहा है कोई बात नहीं, ठीक है ले लेते हैं. बट वो ड्यूरेबल इतना नहीं होता है. इफ यू टॉक अबाउट आई थिंक द क्वालिटी इज समथिंग दैट कैन सस्टेन द मैक्सिमम वॉशेस इफ यू टॉक अबाउट. एंड ये रहना चाहिए आपके वार्डरोब में कि आपने 3-4 सीजन उसमें निकाल दिया कि भाई आपके पास फैब्रिक है एंड फॉर दैट मैटर वी आर वर्किंग ऑन दोज फैब्रिक्स ओनली. तो इस तरीके से वी आर क्रिएटिंग समथिंग दैट something for the conscious customers, audiences that who are conscious about what they are giving back to the environment. एंड ऑल्सो फॉर दैट मैटर, जैसे कि आपने मोडाल के बारे में बात किया, आई फॉलो लाइक influencers, fashion influencers, and also the Indian female celebrities for that matter,
be it Janhvi Kapoor, Sara Ali Khan, Sonakshi Sinha. I see all of them for like on a daily basis or like kind of casual wears also. Indian wear में they wear lot of modal chicken curry kurtis. So जैसे कि फैब्रिक बहुत अच्छा होता है, बहुत ही कम्फी होता है, लेकिन मेंस का अराउंड इस फैब्रिक में कुछ होता नहीं था. बट व्हेन आई जॉइंड हियर एंड आई वाज सर्फिंग थ्रू द वेबसाइट, आवर कंपनी said I saw that they wear this modal shirts well when I really liked it. And you must have also seen in the production house, the manufacturing unit, how we create that fabric. We have that silhouette, how we create that design. So yeah, that is something that we are working on. Like, see, giving that which is not already there in the market, and exploring something new every day. And also there was this thing that day we were having a discussion about the AOV, the चिकन कारी शर्ट. पूरे मार्केट प्लेस पे आई थिंक मैंने अभी तक एक ब्रांड नहीं देखा है जो चिकनकारी के ऊपर शर्ट्स बना रहे हैं. Yeah, we have, see, I told you about the modal and the thing about chicken curry shirts. चिकन कारी में हमने मेंस के अराउंड कुर्ते देखे हैं, विमेंस के अराउंड ऑल ओवर एम्ब्रॉयडरी में हमने देखा है कि या तो एथनिक कुर्ताज मिल रहे हैं या विमेन के कुर्ताज मिल रहे हैं या इवन फॉर दैट मैटर ड्रेसेस भी मिल रहे हैं. बट हमने मेंस शर्ट नहीं देखी थी. तो हमने ये सोचा कि यार लेट्स क्रिएट समथिंग इंडी फ्यूजन काइंड ऑफ थिंग कि दिस इज a culture related thing, heavy embroidery on over the pieces. तो ये सिल्हूट हम इसमें कुछ डिफरेंट क्रिएट करते हैं अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कुर्ताज. लेट्स मेक अ क्यूबन कॉलर, लूज फिट, बॉक्सी फिट, फुल स्लीव शर्ट्स. तो वो हमने मेंस सेक्शन में अभी रिसेंटली लॉन्च किया है. and again, like people are talking about that shirts that कि ये थोड़ा different है. We are liking the fit, we are liking the design, we are liking the silhouette, we are liking the fabric even for that matter. So yes, this is our USP and we are exploring more about it. कि let's do what is undone and let's even undo the like create the unexplored part more. एंड ऑल्सो जैसे कि अभी आपने सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के बारे में बात किया है, तो आप लोग क्या सस्टेनेबल फैब्रिक्स एक्चुअली इंटीग्रेट करते हो अपने बिजनेस में, अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में? क्या करते हो सस्टेनेबिलिटी के प्रमोट करने के लिए? आप लोग करते क्या हो? So if you talk about sustainability, सबसे पहले तो fabric selection, we try and incorporate those kinds of fabrics जो कि environment friendly है कहीं ना कहीं. जैसे if you talk about खादी, linen and modal for even that matter, तो इस टाइप के fabrics हम ज़्यादा यूज़ करते हैं. And we practice the waste reduction and waste management techniques. We follow the packaging, we implement the environment friendly packaging. We hardly use the polythene aspect. We have all our packaging. Yeah, we've seen in the brand that they're only paper packaging. We have all our packaging in paper form only. So yes, these are the things, and we use flower based dyes for all the dyeing, like for the dyeing house. We have our own dyeing house जिसमें हमने dyeing practices जब incorporate करा था और tie dye product create किया था, तो उसमें हमने सारे एजो फ्री और फ्लावर बेस्ड डाइज यूज़ करे. सो जैसे कि आप अभी बोल रहे हो कि आप लोग के मतलब इन हाउस डाइंग यूनिट्स हैं, तो ये क्या कभी एक एडवांटेज होता है कि आप कंट्रोल कर सकते हो कि कौन से टाइप के डाइज आप लोग यूज़ कर रहे हो? जैसे कि बहुत सारे फैशन ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स आउटसोर्स करते हैं कहीं ना कहीं, सो उनके कंट्रोल से वो बाहर चले जाते हैं. तो नहीं, yeah, this is an added advantage because we have a dyeing unit, and dyeing is a process that is very tedious process, and having that advantage that हमारे पास है, ये है कि हम उसको खुद कंट्रोल कर सकते हैं. वी कैन क्रिएट द डिज़ाइंस, वी कैन आउटसोर्स में क्या होता है ना कि यू सेलेक्ट सम डिज़ाइंस एंड इसमें ही आपको बनाना है. एंड इट गेट्स आउट ऑफ योर कंट्रोल. इट गेट्स आउट ऑफ आवर कंट्रोल. बट जब हम इसमें आते हैं, खुद के डाइंग हाउस में आते हैं, तो हम बहुत सी चीज़ें कंट्रोल कर पाते हैं. क्वालिटी भी कंट्रोल कर पाते हैं, कलर्स भी कंट्रोल कर पाते हैं, डिज़ाइंस भी कंट्रोल कर पाते हैं, स्टाइल्स कंट्रोल कर पाते हैं, कितने फैब्रिक में कराना है ये भी कंट्रोल कर पाते हैं. तो एवरीथिंग इज इन आवर. एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं जो सस्टेनेबल ब्रांड्स खुद को क्लेम करते हैं या फिर होम ग्रोन ब्रांड्स फॉर दैट मैटर, उनके हाथों में जब उनके कंट्रोल में जब ये सारी चीज़ें रहता है, आई थिंक उनको ज़्यादा प्रमोट भी करना चाहिए कहीं ना कहीं. आपको क्या लगता है इस बारे में? Yeah, they should, and we are creating that in our content also.
to create that awareness around the consumers? Yes. So had that clear, I think we already have the clear communication in our brand. Yes, people should be aware that how their product is made और क्या composition है उनके product का और कितना impact कर रहा है वो environment को. And आजकल बहुत सारे youth ही ऐसे हैं जो कि हमारे जैसे ही हैं जो कि brand conscious तो है ही साथ साथ में product conscious भी है कि is it harming the composition. They care about the composition, they care about the fit. Apart from fit, they care about everything, that is it harming the environment or not. तो इस टाइप की चीज़ें हैं. Okay, so or कुछ other than this, other than using the sustainable fabrics, dyes or like packaging को छोड़ के और कुछ sustainable practices है जो brand के साथ incorporated है और या फिर integrated है कहीं ना कहीं? वेस्ट मैनेजमेंट पार्ट, तो जिसमें हम ये करते हैं कि कोई भी फैशन ब्रांड होता है उनके पास प्रोडक्ट का वेस्ट बहुत निकलता है. जैसे हम जब फैब्रिक्स को कट करते हैं तो उसके अराउंड जो भी स्क्रैप बचता है उसका हम लोग डाइवर्ट मतलब सेग्रीगेशन करते हैं. हमारी टीम है जो पूरी एडवाइस उनको गाइड किया गया है एंड स्ट्रिक्ट एडवाइस मिली है कि कोई भी कतरन, जैसे हम कतरन बोलते हैं फैब्रिक के स्क्रैप्स को, वेस्ट नहीं जानी चाहिए. The pieces that come out. एग्जैक्टली. जैसे कटिंग हो रही है तो कपड़े का कुछ ना कुछ टुकड़ा बच गया तो वो अलग करके सेग्रीगेट करके द बड़ा पीस द छोटा पीस आर ऑल सेग्रीगेटेड एंड द जो बड़ा पीस होता है उसका हम टोट बैग बनाते हैं. टोट बैग इज गिवन टू ऑल आवर कस्टमर्स एज अ फॉर्म ऑफ एप्रिसिएशन when they order the products from the website or any e-commerce place. And the small pieces, the very small pieces are filled in a gunny bag, जिसे हम लोग बोरा कहते हैं. विंटर्स में हम उसे फिल करके, सिंस आई एम एन एनिमल लवर, तो मैं उसमें ये एडवाइस है कि गनी बैग्स में कतरन फिल करके उसको स्टिच करके डॉग बेड बनता है एंड इट्स बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन NGOs में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. एंड इवन फॉर दैट मैटर मैंने खुद स्ट्रीट्स पे उसको जगह जगह पेश किया है जहाँ पे डॉग्स बैठते हैं एक सोसाइटीज़ सेक्शन में. तो ये इस तरीके से है. एंड कुछ कतरन जैसे समर्स के टाइम पे बहुत सारे हमारे फीमेल क्वालिटी चेकर्स हैं जो हमारी टीम में है फीमेल, वो सारा अपने साथ ले जाते हैं. दे क्रिएट समथिंग आउट ऑफ इट, वेरी यूनिक, वेरी क्रिएटिव. तो आई थिंक यस, ये रिडक्शन और वेस्ट, देखो वेस्ट तो होगा बट आप उसको यूज़ कैसे कर रहे हो, उसको कंज्यूम कैसे कर रहे हो, उसको रिसाइकिल कर रहे हो, अपसाइकिल कर रहे हो या वापस अपने ब्रांड में लगा रहे हो, तो दैट इज़ अप टू द फैशन ब्रांड ओनर्स कि आप उसको कैसे सेग्रीगेट करते हो, कैसे यूज़ करते हो. स्पेशली जो विमेन हैं हमारी, द टीम वी हैव ऑफ विमेन, उसमें दे आर सम आर सिंगल मॉम्स, सम आर डिवोर्स फॉर दैट मैटर एंड सम आर द ओनली सोल ब्रेड अर्नर्स फॉर देयर फैमिली. तो वी ट्राई एंड एड those kind of give employment to those kind of women mostly, जिससे उनको एक सेंस ऑफ ओनरशिप एंड इंडिपेंडेंस आती है एंड दे टेक द ब्रांड मोर सीरियसली. वो अपने काम को, हमारे काम को अपने काम समझती हैं एंड दैट इज़ व्हाट वी रिक्वायर अपने टीम मेंबर्स से. तो दैट इज़ एन एडेड एडवांटेज. उनकी लाइफ को हम एक बेस दे रहे हैं एंड येस दैट इज़ गिविंग देम मोर पावर. एंड अगर वो लिबरेटेड फील करेंगे, एम्पावर्ड फील करेंगे, तो हमारे ब्रांड को एक अलग ग्रोथ मिलेगी एंड दैट व्हाट वी आर. जैसे कि अभी आपने बोला कि एम्पावरमेंट के बारे में, इफ दे विल फील एम्पावर्ड दे विल पुट मोर एफर्ट्स. सो ये क्या सिर्फ वुमेन तक लिमिटेड है क्या? मतलब आपके टीम में क्या प्रोडक्शन उसमें सिर्फ वुमेन टेलर्स या फिर वुमेन लोग ही है, क्या मेन भी है, और क्या आप स्पेशली वुमेन को ही हायर करते हो? नहीं, हमारे टीम में मेन भी हैं, ऐसी बात नहीं है. हमने कुछ ऐसा वो नहीं क्रिएट किया है, डिफरेंस, हाँ, डिस्क्रिमिनेशन नहीं क्रिएट किया है. बट येस, एज आई सेड कि वी गिव प्रायोरिटी टू दोज वुमेन हु आर सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, जिनको जैसे वो बहुत प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं आए हैं, दे हैव हैड सम काइंड ऑफ लिमिटेशंस इन देयर फैमिली, और अब कुछ सिचुएशनल डिसएडवांटेज उनको मिल गए हैं एंड स्टिल दे आर सीकिंग लाइवलीहुड के लिए, दे आर सीकिंग बेसिक लाइवलीहुड रन करने के लिए उनको कुछ ना कुछ करने को चाहिए, प्रोफेशनल हेल्प के लिए. So we kind of don't ignore those kind of women. We try and provide employment to those women especially.
एंड वी हैव अ टीम ऑफ लाइक कारीगर्स में, जिसमें हमारे मास्टर हैं, टेलर्स हैं, उसमें सब मेन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेमेन ही है. तो यस, वी प्रमोट बोथ, वी आर जेंडर न्यूट्रल ब्रांड. ओके. एंड जैसे कि अभी तक तो आजकल के ज़माने में जितने सारे ब्रांड्स हैं ज़्यादातर अपना डिजिटल प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या जो ऐसे बैकग्राउंड से लोग आते हैं उनका कोई ड्रॉबैक्स रहता है कि कुछ प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह दी जाते हैं उनको, वी आर वर्किंग ऑन, सी लिमिट एज इट्स अ D2C ब्रांड? उनको लिमिटेशन रहता है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो उनको इतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिले होते हैं लाइक अस. उनके पास हर तरीके के लिमिटेशन होते हैं, फाइनेंशियल लिमिटेशन, सोसाइटल लिमिटेशन. तो येस, विद टाइम वी प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑल्सो टू लाइक एम्प्लॉयज़, जिसमें हम सबसे पहले जैसे पहले हमारी मेन हेड है, उनका नाम सीमा दी है. तो वो उनको लैपटॉप या डेस्कटॉप फॉर दैट मैटर चलाना नहीं आता था. तो विद टाइम, विद नीड ऑफ आर, जैसे होता नहीं है कि आज टीम में ये मेंबर नहीं है तो देन शी हैज़ टू मैनेज दिस, एंड उसके लिए उनको नहीं आता है, ये लिमिटेशन ना बने. अच्छा. तो उनको ट्रेनिंग दी गई कि हाउ यू कैन ऑपरेट दिस. नाउ शी इज प्रिंटिंग, हैंडलिंग द प्रिंटर्स ऑल्सो, हैंडलिंग द मॉनिटर, डेस्कटॉप ऑल्सो, मैनेजिंग द एक्सेल ऑल्सो. तो ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का ही एक कहीं ना कहीं एक पार्ट है. आई थिंक विद टाइम वी हैव टू ट्रेन आवर एम्प्लॉयज़, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको लिमिट कर देगा आगे आने वाले ग्रोथ के स्टेप्स के लिए. और व्हाट डू यू थिंक कि एक अच्छी कंपनी में और एक अच्छी टीम के लिए आप कैसे टाइप के क्वालिटीज़ देखते हो व्हेन यू गो फॉर हायरिंग? Okay. See, apart from skills, obviously, that matter, we look for a sense of ownership, responsibility, कि ये चीज़ें हैं जो सिखाई नहीं जा सकती. आपको अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आना चाहिए, आपको किसी भी काम के लिए ओनरशिप लेना आना चाहिए. डेडिकेशन लेवल कैन नॉट बी टॉट. So we look for these things. Like, we cannot discipline a candidate when we hire. That should be inbuilt, right? And whatever you do, जो भी आपको हायर कर रहा है, थ्रू योर इंटरव्यू, थ्रू योर इंटरेक्शन, पीपल, द सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप किस माइंडसेट से आए हो यहाँ पे. आप एक्चुअल वर्क करने के माइंडसेट से आए हो कि यू जस्ट हेयर टू लाइक 3-4 महीने काम कर लेंगे, 6 महीने काम कर लेंगे, एक्सपीरियंस लेके चले जाएंगे. तो ये वाला सेगमेंट एकदम फर्स्ट इंटरव्यू के राउंड में, इवन फॉर दैट मैटर सेकंड इंटरव्यू के राउंड में पता चल जाता है. तो आई थिंक कि हमें एक पॉजिटिव सेंस ऑफ माइंडसेट लेके जाना चाहिए किसी भी कंपनीज के लिए, किसी भी कंपनी में काम करने के लिए. एंड उसके साथ साथ हम we can aspire for our growth and the company's growth as well. So what were the initial challenges that you faced while starting this brand? I would say कि challenges बहुत थे, but the major challenge was after cracking the product and price. The place, like we were facing challenges in getting onboarded on all the e-commerce platforms, since we decided कि हम सारे e-commerce platforms पे ही present होंगे पहले. तो I think apart from Amazon and Flipkart, getting onboarded on Nykaa, Ajio, Myntra was a task. And सबसे ज़्यादा it was pain getting onboarded on Myntra, because we tried, we got the approval within the first year only. We got onboarded on Nykaa and Ajio within the first year of our product launch. We started with the in September 2021, and within 1 year we got onboarded on all these platforms. बट मिंत्रा पे ऑनबोर्ड होने के लिए हमें उसके बाद 1 साल और लग गया, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारा पिन कोड एक्सेसिबल नहीं था. आवर ऑपरेटिंग हाउस, प्रोडक्शन हाउस इज इन बाराबंकी, एंड दैट वाज नॉट एक्सेसिबल. तो येस, दैट वाज अ बिग चैलेंज फॉर अस. एंड देयर आर मेनी चैलेंजेस. हायरिंग वाज आल्सो अ चैलेंज. लोग आते थे, जाते थे, एंड दैट वाज अ कांस्टेंट गोइंग ऑन कि कैसे रिटेंशन करें. एम्प्लॉय रिटेंशन वाज अ पार्ट. And then we somehow got a call from IMT Nagpur. Karan was an alumni of alum of IMT Nagpur. So we hired some interns from there. So yeah, I think marketing, even for that matter, communication, we faced problem in that only. We are still working on that. There are many challenges, and it's like you have to channelize your energy, how you are planning to overcome those challenges.
प्रॉब्लम्स हर जगह आएंगी, बट सोल्यूशन माइंडसेट से अगर हम देखेंगे तो येस वी कैन ओवरकम ऑल द प्रॉब्लम्स। सो नाउ दैट इट्स अ D2C ब्रांड, तो आप लोगों ने स्पेसिफिकली कोई चैलेंज फेस किया, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा ट्रबल किया आप लोगों को, जिस प्रॉब्लम ने वाइल लिस्टिंग योर बी इट एनीथिंग लाइक लिस्टिंग योर company on different websites? We face so many challenges around product listing as well. ठीक है, ऑनबोर्ड हो गए, अब क्या प्रोडक्ट लिस्ट करना है, फोटोशूट डन कराना है, एसईओ कराना है, मार्केटिंग करनी है, एडवर्टीजमेंट रन करना है, तो ये सारी चीज़ें एक पार्ट हैं कहीं ना कहीं। एंड हमें ऑब्वियसली यू आर नॉट टॉट कि ये सब कैसे करना है, आपको विद टाइम ये सब चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो हमने भी इनिशियल स्टार्टिंग लिस्टिंग तो प्रोडक्ट की मैंने ही करी थी, तो वॉचिंग ऑल द वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, अमेजोन सपोर्ट के हेल्प के थ्रू, फ्लिपकार्ट के सपोर्ट के, देन आफ्टर 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद, क्योंकि हमने पहले स्कार्फ से स्टार्ट किया था जैसे मैंने बताया, तो उसमें 2021 तक हमें इतना एक्सपीरियंस था कि हाँ ये प्रोडक्ट कैसे लिस्ट होगा, आई कैन डू दैट, ये वाला माइंडसेट था। कभी ये नहीं आया कि अच्छा ये रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, ये तो आता ही नहीं तो करेंगे कैसे, ये कभी नहीं आया माइंड में। तो ये चीज़ हमने सॉर्ट करी कि हाँ ठीक है प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। एंड देन मार्केटिंग का कहीं ना कहीं कॉन्स्ट्रेंट था कि अच्छा ठीक है अब परफॉर्मेंस मार्केटिंग कैसे करनी है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है, प्रमोट कैसे करना है जनरली? एग्जैक्टली। अब प्रोडक्ट तो बन गया, अब लोगों तक कैसे जाएं, कैसे बताएं कि अच्छा हाँ ये भी है कि कोई बेच रहा है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं, इस टाइप की शर्ट्स भी मिल रही हैं विद इन दिस फैब्रिक्स। तो ये एक चैलेंज था हमारे पास। तो सिंस दिस डिजिटल मार्केटिंग थिंग इज सो मच सैचुरेटेड दीज डेज, और इतनी क्राउडेड हो गई है ये मार्केट, finding the right agency for you, or for that matter right performance marketer for you, is very hard. तो आई थिंक वी आर स्टिल क्रैकिंग इट। इतने ट्रायल्स एंड एरर्स के बाद भी वी हैव फेस्ड मेनी चैलेंजेस इन फाइंडिंग राइट डिजिटल मार्केटर फॉर अस। तो आई थिंक वी आर वर्किंग ऑन इट, एंड दीज आर द रियल चैलेंजेस कि अच्छा एसईओ भी करना है, तो अब एसईओ कैसे होगा, content creation, you have to work on social media also, you have to work on the influencer marketing also. So, did you guys hire any agency to get listed for that matter, or you guys did it on your own? Listed for what? Like On the e-commerce websites. okay, the product listing है, product listing. Initially we did it on our own, and later on जब products बढ़ते गए, हमने 30 SKU से start किया था initially, जैसे मैंने पहले बताया, and within the span of 2 years we reached to around 500 SKUs. Yeah, that's great actually within such short span of time. एग्जैक्टली। तो उसके लिए हमारा प्रोडक्शन, हमने सबसे पहले प्रोडक्ट क्रैक किया, हमारा प्रोडक्शन क्रैक किया, मैन्युफैक्चरिंग क्रैक करी, क्वालिटी क्रैक करी, प्राइस पॉइंट पे हमने किया, प्लेस हमने समहाउ सॉर्ट कर लिया था कि अच्छा बेचना तो इसी पे है अभी, इनिशियली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बेचना है, तो ऑन बोर्डिंग साइड बाय साइड वो चल रही थी। देन आवर मेजर लाइक माइनस टिप पॉइंट वॉज कि अब हमें जो क्रैक करना है दैट वॉज मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग करनी है, कंटेंट मार्केटिंग करनी है, तो ये सारी चीज़ें हमने टाइम के साथ क्रैक करी। एंड येस लेटर ऑन हमने एजेंसी को हायर किया था फॉर प्रोडक्ट लिस्टिंग। बाद में हमने फिर बल्क लिस्टिंग करके लाइक वी मैनेज्ड इट। Okay. लेटर ऑन फॉर सम शॉर्टर ड्यूरेशन वी हायर्ड द एजेंसी, जिसके लिए हमने अमेजोन स्पॉन्सर्ड अमेजोन मार्केटिंग एजेंसीज ही हायर करे थे, एंड दे हैंडल आवर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। सो यस। एंड जैसे कि हम आपने प्रोडक्ट के बारे में बात किया, एंड D2C के लिए तो होता ही है ज़्यादातर वेबसाइट्स, मार्केट चैनल्स, ये हो गया, प्लेस भी हो गया। वो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी मतलब कैसे आप लोगोों ने डिसाइड किया है कि इस प्राइस पॉइंट पे हम बेचेंगे, और ये कहीं ना कहीं ये सपोज फॉर वन शर्ट अगर इफ़ यू आर सेलिंग इट फॉर एक्स नंबर ऑफ प्राइस, इफ़ इट्स द राइट फिट फॉर द मार्केट एंड द काइंड ऑफ कंज्यूमर्स यू आर टारगेटिंग, वो कैसे किया? सी हमारा एवरेज प्राइस जो प्रोडक्ट का है वो अराउंड 1500 का है, 1200-1500 की रेंज का है। एंड ये ऑब्वियसली कोई भी अगर कोई भी प्रोडक्ट हो तो आप मार्केट को एनालाइज करते हो कि ठीक है अगर हम ये मटेरियल की शर्ट बना रहे हैं, जैसे हमारा प्रोडक्ट शर्ट है,
फॉर दैट मैटर आपको कोई भी प्रोडक्ट हो, आप मार्केट को एनालाइज करते हो, प्रोडक्ट को एनालाइज करते हो, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को एनालाइज करते हो. जस्ट बिकॉज कि मार्केट में 600 रुपये की भी शर्ट आ रही है तो हमको उसी को पिच करना है. यू हैव टू मेक अ स्टैंडर्ड फॉर योर प्रोडक्ट एंड देन मार्केट इट अकॉर्डिंगली एंड कम्युनिकेट वॉट यू आर डूइंग इट differently from other brands or other market. So that is something that I think you should crack. Price point पे हमेशा you have to think as per your product. आजकल आजकल जो ये बस चलता है कंटेंट मार्केटिंग का, इन्फ्लुएंसर्स का, तो आपके इन सब चीज़ों में मानते हो कि फॉर द राइट मार्केटिंग एंड दैट टू फॉर अ फैशन ब्रांड, इन्फ्लुएंसर्स आर द ओनली वे टू क्रैक इट, और लाइक what do you think that for a fashion brand owner, what he or she can do to make their to promote their product for that matter, or their company for that matter? See, social media right now is a boom, and people are spending a lot of time on Instagram and on reels. So yes, that is a part. You cannot ignore it. Content marketing is a part. You have to create content. You have to go to influencers. ये आपके प्रोडक्ट के लिए और ब्रांड के लिए एक प्लस पॉइंट है. यहाँ से यू कैन लिटरली मेक अ ब्रांड. Through the right presentation. Through the right presentation, through the right strategy, obviously that implies everywhere. But yes, you cannot ignore it. ये आजकल की इंडस्ट्री है and obviously a lot of thing depends on your प्रोडक्ट. आपके कस्टमर्स, आपका कस्टमर बेस क्या है, आप किस कस्टमर बेस को टारगेट कर रहे हो. वैसे आजकल हर एज ग्रुप आपको इंस्टाग्राम रील पे मिल जाएगा. तो यस, एंड आप अपने कस्टमर को समझो. अगर आपने अपने कस्टमर को क्रैक कर लिया है, आप मार्केटिंग और कम्युनिकेशन भी क्रैक कर लो. ओके, ऐसा कभी कोई इंसिडेंट हुआ है आप लोगों के साथ while you guys just while in the initial days for that matter, कोई मॉडल्स या फिर कोई इन्फ्लुएंसर्स के साथ कुछ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है जो which was not so pleasant? सी इनिशियली मॉडलिंग वगैरह तो हमने अपनी टीम से स्टार्ट करी थी. करण मॉडल फॉर मोस्ट ऑफ अवर प्रोडक्ट्स. तो हमने कॉस्ट कटिंग करी थी बहुत ज़्यादा, एंड करनी भी चाहिए. वी आर अ बूटस्ट्रैप ब्रांड. तो हमने बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगाए थे इनिशियल फोटोशूट्स पे. एंड ऐसा कुछ नहीं है, ये पार्ट एंड पार्सल है. लोग आते हैं एंड इफ़ समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंस इट इज़ टेकन केयर ऑफ. बट हमने ऐसा नहीं एक्सपीरियंस किया. ओके, जैसे कि बोला आपने बूटस्ट्रैप ब्रांड है, तो आप दोनों का ही पैसा था पहले से, और यू गाइस टुक इट फ्रॉम योर फैमिली? इट वाज फ्रॉम फैमिली. हम एमबीए कर रहे थे, हमने जॉब भी नहीं करी थी, तो हम सीधे बिजनेस में ही आ गए थे. तो इट वाज टेकन फ्रॉम फैमिली. ओके, तो अभी एक्सपेंशन के लिए तो ऑब्वियसली ऑल द कंपनीज नीड फंड्स एंड ऑल, तो आप लोगों ने एक्सपेंशन के बारे में क्या सोचा, या फिर टू गेट द फंडिंग्स, ऐसा कभी कुछ प्लान में है, पाइपलाइन में? It's in pipeline. We are planning. So yeah, we'll roll it out soon. Ishita, where do you see your brand Javanishka 5 years down the line? See, it's Javanishka is here to stay. Definitely, it's going global. See, I said that it's a sustainable brand. It's a fashion brand, and we are creating products for those who are very conscious for the products, what they are wearing. So yeah, Javanishka is definitely going global, and we are also planning our offline store. It would be launched by the mid of July this year. So it would be a first offline store in Lucknow at DLF MyPad. Yeah, it's a lot of things are happening, and we are here to stay definitely. So तो अभी तक it's been I think almost 2.5 to 3 years like of starting a brand. Yeah, it's been 2.5 years. हाँ, so अभी इतने दिन वेट क्यों किया, like for the perfect timing, or like मतलब क्यों अभी तक स्टार्टिंग किया था for to start an offline store for that matter? ये किसी भी फैशन ब्रांड ओनर्स का या फिर कोई भी बिजनेसमैन का एक सपना तो रहता है, एक खुद का ऑफलाइन स्टोर. यार मतलब ये एक सपना नहीं, बट ये होता है कि अब क्या आपने स्टार्ट कर दिया, अब इसके बाद आप क्या कर रहे हो. आपके प्रोडक्ट को, आपके कस्टमर को उस चीज़, और आपके ब्रांड को, आपके बिजनेस को और किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है अब एट दिस मोमेंट. तो अब हमने स्टार्ट किया था. हमने तब नहीं सोचा था कि हम ऑफलाइन स्टोर प्लान करेंगे. वी जस्ट स्टार्टेड. हमने धीरे धीरे करके सारे मार्केट प्लेसेस को कवर किया, एज आई टॉक्ड अबाउट.
शॉपर स्टॉप पे भी वी वर प्लानिंग बट वी केम ऑनलाइन ऑन शॉपर स्टॉप. तो इस तरीके से बट ऑफलाइन स्टोर के लिए यस हमारे ब्रांड के हमारे प्रोडक्ट्स को रिक्वायरमेंट थी बिकॉज आर USP इज़ द टच एंड फील ऑफ द फैब्रिक. सो वी वांटेड टू गिव सम टच पॉइंट टू द कस्टमर्स. वी प्लान्ड इट इन द इनिशियल ईयर्स ऑल्सो. 1.5 साल पहले हम लॉन्च करने वाले थे हमारा स्टोर in Palacio and we announced it also. सब चीज़ हो चुकी थी but due to some technicalities and errors we could not do it. So yeah, that was a point where कि हाँ communication हो चुका है. We have been promoting it in our pop-up stalls. Like we used to present our brand on the pop-up stalls of Noxins. Noxins का लखनऊ में event होता है and it's a very very famous event in Lucknow. तो उसमें हमने अनाउंस कर दिया था. मेजर ऑडियंस हमारी जिनको टच पॉइंट वहाँ पे मिलता था दे लाइक द प्रोडक्ट. तो दे यूज टू आस्क डू यू हैव एनी स्टोर, डू यू हैव एनी स्टोर. सो वी सेड कि हाँ वी आर प्लानिंग. बट उस समय नहीं हो पाया एंड दैट वाज समहाउ अ सेटबैक कि या सब कुछ हो चुका था देन तब भी नहीं हो पाया. तो वी थॉट कि चाहे जितना प्लान करके चल लो, चाहे जितना चीज़ों को कंट्रोल करके चल लो, सम थिंग्स आर नॉट मेंट टू हैपन एंड दे विल हैपन एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस. सो या दैट हैपेंड. And नाउ वी आर कमिंग विद द स्टोर. so, and we're very excited for that. Exactly, we are very excited. So, what advice would you like to give to the D2C brand owners? Who are willing to start their brand? First of all, okay. तो ठीक है. इसमें आई वुड से कि यू हैव जो बेसिक 4 P's हैं वो तो हैं ही. पहले उसको क्रैक करो. अपने प्रोडक्ट को समझो. पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो. ये कोई भी D2C ब्रांड नहीं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू फिल इन द गैप. गैप कैसे फिल करोगे ये सॉर्ट करो. Like if it is a price, it is a product or it is a service, you decide it first. And then look out for the channels you are going to sell through. Obviously अगर e-commerce कर रहे हो, D2C कर रहे हो तो आपको अपनी वेबसाइट मेंटेन करनी पड़ेगी and website building is also a major challenge. But you have to find in the right hosting plan, the right e-commerce platform where you will be launching a website. And you will have to look for the performance marketer, digital marketing crack करनी पड़ेगी आपको. तो I think just go with the step. एक एक करके करो. Just don't think कि इतना कुछ करना है तो हम कैसे करेंगे. But be specific about your audience. What your audience requires. What is the gap you are filling, and are you providing the exact solution to it or not? And if yes, then just choose the right candidate or person who would be managing your content and communication part. I would say the marketing part, because that is the major thing that you have to look in for the D2C part. So yes, creating a D2C brand is tough, but we are also in the process of doing that. So just learn, do the mistakes and learn from it and never repeat that mistake, I would say. After working here, I have observed one thing, that you guys were on a track of 100% growth for that matter. So you guys almost cracked it. But yeah, I think somewhere expansion is in the plan in your guys' habit. And Yeah, we have like year on year growth है हमारा 100%. अगर हम देखें दोस्त that's very rare actually. Not everybody can do it because the fashion brand market is totally saturated. So not everybody can crack. Exactly. हमने एक पॉइंट बहुत अच्छे से ये समझ लिया है कि आवर प्रोडक्ट इज सॉर्टेड. हमें इस चीज़ की टेंशन नहीं है क्योंकि हमने कहीं ना कहीं वो बिल्ड कर लिया स्टेप कि क्वालिटी ऐसे चेक होनी है. क्वालिटी चेक ओनली टेक्स अगर प्रोडक्ट बनने में, अगर मैं कहूँ एक प्रोडक्ट बनने में आधा घंटा लग रहा है तो क्वालिटी चेक करने में 15 मिनट लग रहा है. उस प्रोडक्ट को बनने का आधा टाइम हम क्वालिटी चेक में दे रहे हैं. इवन फॉर दैट मैटर द प्रोडक्ट, रेडी प्रोडक्ट में जो थ्रेड्स होते हैं उनको फिनिश करना, क्वालिटी की अगर कोई भी लेबल लगा है तो सही तरीके से लगा है कि नहीं, द लेबल, द टैगिंग, द प्रोडक्ट टैगिंग एंड द क्रीजिंग, द कॉलर, एक एक चीज़, द स्टेन्स, माइन्यूट स्टेन्स तक इवन माइंड में रख के. एंड अगर ज़रा सा भी स्टेन है प्रोडक्ट में तो हम उसको हटा देते हैं ये कह के कि नहीं, आई वुड नॉट वेयर इट, सो आवर कस्टमर वुड नॉट वेयर इट. So this level of quality check is practiced
एंड वी टेक प्राइड इन सेइंग दिस कि अगर आपका प्रोडक्ट फिनिश अच्छा है, पैकेजिंग अच्छा है, प्रोडक्ट का फील अच्छा है, तो आपके पास रिपीट कस्टमर्स आएंगे एंड वो जो मार्केटिंग होगी वो कोई मार्केटिंग नहीं कर सकता, कोई भी परफॉर्मेंस मार्केटर नहीं कर सकता. वर्ड ऑफ माउथ की जो मार्केटिंग होती है, दैट इज समथिंग डिफरेंट. ओके, एंड ऑल्सो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो जो डिफरेंशिएशन की था, एक पॉइंट था, डिफरेंशिएशन फैक्टर था, वो कहीं ना कहीं हेल्प किया है आप लोगों के पास. Exactly, the touch, the feel, the fabrics, the designs, the fit, The uniqueness. the uniqueness, everything. So, other than all these things, other than the traditional problems that one might face while doing the business, while having their own business, क्या कभी वैसे लो पॉइंट्स आए आपके लाइफ में जहाँ पे आपको लगा था कि आप नहीं कर पाओगे? या आई टोल्ड यू अभी एक जैसा हमारा स्टोर वाला प्लान जब फेल हुआ था, एंड ऑल्सो मिंत्रा में हमें 1.5 साल लग गया आने में, प्रोडक्ट लॉन्च करने में. तो लो पॉइंट था डेफिनेटली. ऐसा भी लगा कि ओ माय गॉड अब नहीं हो रहा है यार. लेकिन ये कहीं ना कहीं अपने आप को वापस लाना एंड कमिंग बैक टू नो आई हैव टू डू इट, आई एम अ हसलर, मुझे करना ही करना है, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा हमारे लिए. तो ये चीज़ मुझे लगता है कि मैंने इनहेरिट करी है अपने पापा से, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे वो क्रैक किया था विद लिमिटेड रिसोर्सेज. लाइक हम लोग बाराबंकी से हैं, उत्तर प्रदेश. या उत्तर प्रदेश. लखनऊ से अराउंड 20-30 मिनट्स दूरी पे है. तो वहाँ पे रह के वी आर कमिंग फ्रॉम अ टेक्सटाइल बैकग्राउंड, जहाँ पे हम होलसेल करते थे स्कार्फ्स का, एज आई इन्फॉर्म्ड. बट वी वर नॉट इनटू एक्सपोर्ट्स इनिशियली. My father took that initiative, started it with limited resources. So back in 2000s, limited resources उन्होंने start किया. Obviously आज अब हम MBA करते हैं, हम international business की पढ़ाई कर लेते हैं, and everything is on internet, very easily accessible. He started back then, and with this attitude, थोड़ा family से हट के, people were, हमारी family में ही, हमारी society में ही people were कि oh you are like risking too much, you are going outside India, oh my god, अगर product फंस गया तो, माल फंस गया तो, पैसे नहीं आए तो, इस टाइप का cheat fraud हो गया तो. But he decided नहीं, I have to do it, I have to create something different for my generation. मुझे एक्सपोर्ट करना है. एंड वो हसल वाला जो था, वो फेल भी हुए इनिशियल कि नहीं, हाँ ठीक है, सच में माल फंसा, सच में पैसे नहीं आए. बट ऐसा नहीं कि उन्होंने गिव अप कर दिया. उन्होंने कहा अभी ये ऐसे नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है ना, आई विल डू इट. देयर इज अ वे एंड आई विल फाइंड इट. कि लोग ही तो करते हैं, वो हमेशा यही कहते हैं, इंसान ही तो करते हैं ना, उनके पास भी 24 घंटे ही होते हैं ना, हम भी इंसान ही है ना. करो, अभी नहीं हो रहा है, टाइम लो, थोड़े टाइम बाद करो. तो मुझे लगता है ये एटीट्यूड जब उनके वहाँ से आया कि अरे यार, लाइक दिस इज द ओनली एटीट्यूड व्हाट इट इज रिक्वायर्ड टू क्रैक एनीथिंग. टू लिटरली आप किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकते हो इस एटीट्यूड से. एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं वी नो दैट यू आर एन अग्रवाल एंड यू बीइंग अ मनिया और लाइक मारवाड़ी, बिकॉज सब बोलते हैं कहीं ना कहीं कि उनमें वो होती है, वो एक बात होती है. एंड यू वोंट बिलीव, आजकल इंस्टाग्राम में भरे हुए सारे मीम्स. तो क्या आपको क्या लगता है, ये चीज़ होती है उनमें? मतलब जब वो बचपन से पैदा होते हैं तब से उनमें ये चीज़ इनहेरिटेड हो जाती है कि बनिया लोग बिजनेस करेंगे, और करेंगे तो धासु बिजनेस करेंगे. they'll make it. They don't believe in burning, they only believe in making doing a running a profitable business. ये तो हमें बताया ही जाता है कि मतलब ये हमने देखा है, बचपन से देखा है. मैं ये कहूँगी इसमें कि अगर आपने 50 रुपए का प्रोडक्ट बनाया है एंड उसको 100 रुपए का बेचा है, तो ये 50 रुपए आपका प्रॉफिट है. तो ये मोटा मोटा चीज़ जो दिमाग में रहता है ना, कि आप घर क्या ला रहे हो, आप पैसे क्या बचा रहे हो, ठीक है आपने बंद कर दिया, एड में चला दिया आप. क्योंकि ई कॉमर्स बिजनेस, D2C ब्रांड बिल्डिंग इज समथिंग कि बहुत बहुत ज़्यादा कॉस्ट बीच में इन्वॉल्व हो जाता है. डायरेक्ट कैपिटल भी चाहिए होता है बीच में. प्रोसेस किसी भी प्रोडक्ट को बेचने का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. इफ़ यू टॉक अबाउट द लॉजिस्टिक, इफ़ यू टॉक अबाउट द टैक्सेस, वो तो चलो ठीक है सब में होता है. इफ़ यू टॉक अबाउट द एडवर्टाइजमेंट, इफ़ यू टॉक अबाउट द कमीशन, द मार्केट प्लेसेस चार्जेस, तो ये सारी चीज़ें, लॉजिस्टिक फीस एंड ऑल्सो हैंडलिंग फीस, तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें ऐड हो जाती हैं, जिसके ऊपर हमें अलग से GST देना पड़ता है.
ठीक है, तो ये सब चीज़ें काट पीट के जब हम सिंपल सा बिजनेस है, हमने सिंपल सा सीखा था कि ये 50 रुपए का बनाया, 100 रुपए का बेच दिया, 60 रुपए का बेच दिया, 10 रुपए तुम्हारा मुनाफा। बट इसमें हम 50 रुपए का अगर बना रहे हैं तो इसको बेचने के लिए इतना लग रहा है, इसको बेचने के लिए इतनी फीस देनी पड़ रही है, लॉजिस्टिक कितना देना पड़ रहा है, तो बहुत कुछ एनालाइज करके दिमाग में रहता है चीज़ें। तो ये आए टू योर आंसर कि ब्लड में कहीं ना कहीं होता है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ मारवाड़ीज और ये गुज्जूज ही क्रैक कर रहे हैं। एवरीबडी जिसके माइंड में है, जिसके पास ये एटीट्यूड है, जिसके पास स्किल है और डिटर्मिनेशन है, डेडिकेशन है, दे कैन डू इट। ओके, सो आप क्या बोलना चाहोगे जो स्टार्टअप कंपनीज बर्निंग में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है? इज इट सस्टेनेबल इन द लॉन्ग रन? क्योंकि हाइप में आके तो लोग कुछ भी करते हैं. No, I think burning culture, burning अब एक exactly hype ही हो गया है I would say, but it would not sustain you for in long run. आप एक लिमिट तक बर्न कर सकते हो. बर्न करने का भी मतलब ये नहीं है कि आप उसमें ये ना देखो कि आपके पास कितना लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा. एक लिमिट डिसाइड करनी पड़ेगी कब तक आप ये करने वाले हो. बट अगर कोई बिजनेस पैसे नहीं बना रहा है तो फिर वो बिजनेस नहीं है. देन यू आर People should be knowing when is the right time to start. यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप. आपको अभी रिक्वायरमेंट है एडवर्टाइजमेंट की, हैवी इन्वेस्टमेंट की, बट यू शुड बी नोइंग व्हेन टू स्टॉप. तो ये एक होना चाहिए, वरना तो सिर्फ बर्न करना इज नॉट इन. फिर आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप लॉस में हो. Totally, I also agree with you on this. And क्या लगता है आप 15-20 lakhs में एक फैशन ब्रांड स्टार्ट हो सकता है? हाँ, हो सकता है. डिपेंड करता है आप कहाँ बेच रहे हो अपना प्रोडक्ट. सो आई वुड से अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हो, जैसे कि हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमें कोई ब्रिक एंड मॉर्टर के पैसे नहीं देने पड़े थे, तो यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट अ ब्रांड इन 15 to 20, एंड हमने उसी में किया था. Okay. And do you think that entrepreneurship is for everyone? Can everybody do it? As we see a lot of not only fashion brands but other businesses are also booming. Like एक startup, एक hustle का culture बन गया है अभी. See, back then when I started, when we thought 2019 और 20 में जब हमने ये आइडिया कहीं ना कहीं ला रहे थे, एंड स्टार्ट हमने प्रॉपर फुल फ्लेजेड 2021 में किया था, तब ये कल्चर बन चुका था कि एवरीबडी वॉज कमिंग अप विद देयर ब्रांड एंड एवरीबडी वॉज टेकिंग इट ऑनलाइन. एंड सबको अपनी वेबसाइट खोलनी थी, सबको अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करना था. लेकिन एक दो स्टेप पे आके काफ़ी सारे लोग रुक गए, क्योंकि उनको लगा कि बस इतना ही होता है. बट इतना नहीं होता, वो स्टार्ट होता है. अब स्टार्ट तो कर देते हैं हम, लेकिन हमें नहीं समझ में आता कि अब हम इसके आगे क्या करें. जैसे हमने 30 SKU से लॉन्च किया, अब हम उसके बाद 500 तक कैसे पहुंचे. हमने अमेजोन फ्लिपकार्ट से स्टार्ट किया, तो हम उसके बाद हमने नायका, अजियो, शॉपर स्टॉप तक कैसे प्रोडक्ट को लिस्ट करवाया, कैसे हमने अपना लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेज किया. इट्स नॉट दैट यू क्रैक इट इन वन टाइम. यू हैव टू गिव सम टाइम. समय को समय देना पड़ता है. कुछ चीज़ें लिटरली समय से पहले नहीं होती हैं, एंड आई बिलीव दैट. आप लाइक इट्स सेड इन गीता ऑल्सो कि आप अपने कर्म करना मत छोड़ो. तो दैट इज व्हाट इट इज. यू हैव टू कीप डूइंग इट अंटिल यू फिगर आउट कि कैसे होगा, और कर करके ही आता है. तो मिस्टेक्स करेंगे, हमने लॉजिस्टिक कई बार चूज किया, नहीं समझ में आया, कुछ टाइम पे चेंज किया. अभी भी हम करते रहते हैं ये चीज़ कि हाँ ठीक है, गिव किया, experimenting and then decide what is working best for you. And as wise men say कि entrepreneurship is for like people who are ready to walk on the burning coal. Exactly. If you are ready to sacrifice your Saturday nights, Sunday mornings, कोई Sunday और Saturday नहीं होता entrepreneurs के लिए. आपको literally जलते हुए कोयले पे चलना है. And अपने से पहले you have to think for the team. There is no fixed salary structure for yourself. अपने लिए आप पैसे नहीं निकाल सकते. हमने बहुत टाइम तक नहीं भी निकाले थे, क्योंकि हमें टीम को देना होता था. लेकिन जब हमने पैसे बनाने स्टार्ट करे थोड़े बहुत, तो हमने टीम के साथ साथ अपने लिए भी निकालना स्टार्ट किया, क्योंकि हमें पता है कि वो टाइम हम जो दे रहे हैं, हम कहीं और दे रहे होते तो हम कुछ ना कुछ पैसे बना रहे थे. एंड दैट इज नॉट एडवाइस कि आप बहुत टाइम तक पैसे ना निकालो. हाँ, money will also give you some sort of motivation. Exactly. For that. तो yes, entrepreneurship is for the ones who are ready to literally work on burning coals and keep their team before themselves,
and are ready to hustle. I would advise before, without hustling, you won't reach at any step. कोई भी आगे एक स्टेप बढ़ ही नहीं सकते, हर स्टेप में हसल है. सो इशिता, अभी तो हमने फैक्ट्री में, प्रोडक्शन हाउस में बहुत सारे सैम्पल्स देखे एंड मुझे तो आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट द अपकमिंग लॉन्चेस, बट आई डिडंट सी दिस वन. आई रियली लाइक व्हाट यू आर वेयरिंग एंड देयर इज समथिंग रिटन on the shirt. Yes. Okay, so you got it personalized. Yeah, it was some of my creation. So yes, it is founder special. Oh my god, perks of being a founder. And also, now I want to do a quick Q&A of the comments that I got to see on the Instagram page of Javanishka. So, a girl has commented that she just loves the linen corsets and the crop shirts as well. She thinks that they are the best for the work. In our women's segment, right? In the women segment. But she wants ki आप लोग मतलब she has written ki why don't you guys launch more office Yeah, wear. we are. See, we started with men's product, but definitely we have curated some of the products solely around women. So we are coming up with more such products. We are creating the samples for workwears also. The shirt I'm carrying is also one of that sample. So we are planning with more workwears and women wears as well. So it's in pipeline. Okay, and somebody has commented that he is just loving the tie-dye product, and so, and you guys always say that it is one of the hit product of you guys. So how did you guys even come up with that idea? Yeah, I also want to know that. So tie dye उस समय हमने starting में launch किया था, and the dyeing house added to an advantage to this. Yes, tie dye was our hero product because of the fabric. People like the see. बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो टाई डाई प्रोडक्ट्स को प्रिंटेड में करके बेच रहे हैं. प्रिंटेड है बट दे आर नॉट एक्चुअली डाइड. सो ये जो हैंड डाइड का कॉन्सेप्ट है, आप लोगों के प्रोडक्शन हाउस में या हैंड डाइड? एग्जैक्टली हैंड डाइड. जैसे कि डाइंग यूनिट पर. हाँ, इट इज़ एग्जैक्टली प्योरली हैंड डाइड. एंड द कलर्स, द डिज़ाइंस, उसको अलग अलग सेगमेंट्स बोलते हैं. डाबू बोल दिया, बांधनी बोल दिया. तो वो सेगमेंट्स भी हमने लॉन्च करे थे प्रोडक्ट्स में, तो लोगों को बहुत पसंद आया था. द सिल्वर्स वी लॉन्च इन ओवर साइज क्यूबन कॉलर टाई डाई ओवर शर्ट. एंड इवन फॉर डैट मैटर हमने कार्गो में भी एक डिस्चार्ज करके एलिमेंट लॉन्च किया था, जो कि हमारा थोड़ा सा क्लब वेयर था. अच्छा. तो लोगों को वो भी बहुत पसंद आया था. तो येस, experimentation has always worked for us, I would say, and that's how the tie dye has been a hero product. And also there's a guy who has commented that the new crochet wear that was there, crochet launch was there, so उसको वो बहुत अच्छा लगा. And बाहर के मतलब बाहर के इंटरनेशनल कंट्रीज में सब रैपर, सब सिंगर्स वगैरह आजकल बहुत पहन रहे हैं क्रॉशेट में. तो फिर इतने कम प्राइस पॉइंट में कैसे मिल रहा है? मतलब नॉट कम प्राइस पॉइंट, आई मीन टू से कि अफोर्डेबिलिटी. हाँ, अफोर्डेबल. तो कैसे किया आप लोगों ने ये? सी क्रोशे एक तो फैशन ट्रेंड था, क्रोशे बहुत इन था, एंड वी वांटेड टू ऐड समथिंग टू आवर कलेक्शन दैट पीपल आर लाइक आस्किंग फॉर इट. तो कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले हम ट्रेंड्स को स्टडी करते हैं, ऑडियंस क्या चाहती है उसको फॉलो करते हैं, एंड देन वी क्यूरेट दैट प्रोडक्ट विद आर ओन स्पेशलिटी, आर ओन टच पॉइंट. तो इस तरीके से हमने क्रोशे के साथ आए थे. यस, प्राइस पॉइंट है उसमें. People are paying higher end of amount for that crochet element, but we have launched it in a lower segment. ताकि लोग इसका People can easily take it. So, since it is a trend and fashion में कुछ trends ऐसे होते हैं, they come and go. तो ये पुराना ही ट्रेंड आया है. लाइक अगर हमने पुराना फैशन उठाए, इवन इन द बॉलीवुड मूवीज वी हैव सीन दिस ट्रेंड कमिंग बैक. तो आएगा जाएगा, तो इस हिसाब से हमने उस प्राइस पॉइंट को भी ध्यान में रखा हुआ है उसको लॉन्च करने के लिए. ओके. एंड किसी को लगता है, कुछ कंज्यूमर्स को लगता है, जैसे उन्होंने टाई डाई को बोला है कि वो प्रिंटेड है, लेकिन जैसे कि आपने बोला वो नहीं है. तो एक कमेंट था इसके अराउंड कि आजकल प्रिंटेड शर्ट्स इतना चल रहा है, तो आप लोग के ब्रांड में ये प्रिंटेड शर्ट्स क्यों नहीं है? ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जावनिष्का इज ओनली फॉर फॉर्मल वेयर्स. इज इट सो?
नो, पहले जब हमने टाई डाई लॉन्च किया था तो लोगों को लगता कि जावनिश का इज ओनली सेलिंग टाई डाई प्रोडक्ट्स। जब हमने फॉर्मल वेयर लॉन्च किया था इट्स लाइक ओनली सॉलिड्स। सो ऐसा नहीं है, वी हैव अ होल bunch of fabric styles, I would say, that can cater to all your moods and occasions, be it formal wear, be it beach wear, be it your casual wear, be it your relaxed fit. We have everything. तो printed shirts may we have launched our latest oversized Cuban collar printed shirts also. You can check that out. Yes, and we have launched some of the printed shirts in the semi-formal range. So yes, we have some prints and we are planning to launch it more. And the last comment is about the quality. एक कस्टमर ने कमेंट किया है कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। इतने सारे ब्रांड से खरीदते हैं लोग, बट ये जो चेकिंग वगैरह होता है, अगर आप इसके बारे में बात करना चाहो कि वो जो एक फिनिश होती है क्वालिटी सारे प्रोडक्ट्स में, वो कैसे मेंटेन रहता है, इंटैक्ट रहता है? I talked about the quality checks that we have at every step. I would take you through that. See, पहले तो जब हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार होता है, through all the steps, we give it to a rough, पहले जब फैब्रिक आता है, फैब्रिक का क्वालिटी चेक होता है, एंड इन केस कटिंग में एंड एनीथिंग में कुछ स्टेन्स मिस हो गए, कुछ कट मिस हो गए, तो आफ्टर प्रोडक्ट इज़ प्रिपेयर्ड इट इज़ नॉट बीइंग मिस्ड। प्रोडक्ट बनने के बाद उसके थ्रेड से लेके एक एक स्टेन्स को बहुत ज़्यादा डीप ऑब्जर्वेशन में देखा जाता है। लेबलिंग, इवन प्रोडक्ट टैग्स, सब चीज़ देखी जाती है। एंड इसके लिए हमारे पास टीम है फॉर अराउंड 5 to 6 पीपल, जो एक एक शर्ट के साथ अराउंड 7 to 8 मिनट्स स्पेंड करते हैं। देन इट इज़ गॉन फॉर स्प्रेइंग एंड प्रेस आयन होता है, देन इट इज़ गोइंग फॉर फाइनल पैकेजिंग। तो इस तरीके से हम अपनी क्वालिटी को अपने क्वालिटी के साथ जस्ट अप कर पाते हैं, एंड वी ट्राई टू मेंटेन इट बाय फॉलोइंग एवरी सिंगल स्टेप। Okay, and this is not a question, but now that I'm really liking this thing that you have got embroidered on your shirt, yeah, now that we are working in house, so can we also get it embroidered on our clothes? Definitely, you can, and whatever you want, you can suggest as some design. This was for me, so I curated it for myself. ये हमने खुद से ही एम्ब्रॉयडरी करी है मशीन पे बैठ के, तो नथिंग इज, तुम लोग खुद भी कर सकते हो, बता भी सकते हो, वी कैन डू इट फॉर योरसेल्फ। अरे ये तो कुछ एडवांटेज होना चाहिए ना उस काम करने का with a fashion brand. And also somebody has asked that is there any physical store of Javanishka? Yeah, we have launched it soon. It's our first offline store in Lucknow at DLF MyPad. So yes, you guys can visit and like look for the products, since our USP is touch and feel. So you can see for yourself. That's it from my side, Ishita. I'm so glad that you could take all of my questions. I've answered all of them gracefully, I would say. मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कि कैसे ब्रांड स्टार्ट करना है, कैसे क्या I think all that you had in mind, you asked everything. स्टार्टिंग फ्रॉम मतलब फोटो शूट टू गेट इट लिस्टेड, प्रमोशन, मार्केटिंग, एवरीथिंग, इन्फ्लुएंसर्स. सो डिड यू लाइक इट? I loved it. I loved it, and I loved the way you executed it. Thank you. Thank you for having me. Also, I would say कि hope this helps to the people who are willing to start their own brands or looking for some motivation segment side from us as an entrepreneurs. So I would say all the best. Keep doing, keep hustling, and yes, do follow us on our Instagram. So guys, you all can follow Miss Founder. She is just an amazing lady, I would say. And when you guys will follow, you guys will come to know that एक फाउंडर एक बिजनेस को रन करने के लिए क्या क्या करते हैं, ऑल द इनसाइट्स, ऑल द हसल्स यू विल बी एबल टू सी, एंड ऑल द डिटेल्स ऑल्सो ऑफ द फैक्ट्री, ऑफ द वर्क दैट गोज इन द ऑफिस एज वेल, एंड सब कुछ आप देख सकते हो. तो प्लीज़ फॉलो Miss Ishita Agarwal, and her Insta ID would also be added in the description. So yeah, please do it. And that was it from our side.